جب 10ویں رات ہوئی تو اس کی بہن دنیا زاد نے کہا کہ بہن اپنی کہانی تمام کر۔ اس نے کہا اے بادشاہ، وہ سب نشے میں بدمست اور بے لگام تھے اور ان میں کسی قسم کی شرم و حیا اور تہذیب نہ تھی، اور ان کے دماغ نشے کی وجہ سے آسمان پر چڑھے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اچھا بھائی تو ہی بتا کہ اس کا نام کیا ہے۔ دوسری نے کہا سچ مچ تمہیں اس کا نام معلوم نہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ پھر دوسری لڑکی نے کہا یہ ہے سدا ہوا خچر جو بغیر چھلکے کے تل کھاتا ہے اور ابو منصور کی سرائے میں آرام کرتا ہے۔ اس پر وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ اب پھر شراب کا دور چلنے لگا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور انہوں نے حمال سے کہا اٹھ، جوتے پہن، سلام کر اور چلتا بن۔ حمال نے کہا خدا کی قسم میری روح کا نکل جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں یہاں سے جاؤں۔ آؤ ہم اس رات کو کل صبح سے ملا دیں۔ سامان لانے والی نے کہا اسے آج رات یہیں ہمارے یہاں سونے دو تاکہ ہم کچھ دیر اور اس کا مذاق اڑا لیں۔ ایسے شخص کے دوبارہ ملنے تک کون جیتا ہے؟ وہ بڑا مسخرہ اور ظریف ہے۔ انہوں نے کہا تو ایک شرط کے ساتھ رات کو یہاں رہ سکتا ہے کہ تو ہماری ہر بات مانے اور اگر کوئی بھی بات دیکھے تو اس کا سبب نہ پوچھے۔ حمال نے کہا بہت خوب۔ انہوں نے کہا اٹھ اور دروازے پر جو کتبہ لکھا ہوا ہے اسے پڑھ۔ وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک کتبہ لگا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا تھا جو شخص ایسی بات پوچھے گا جس سے اسے کوئی تعلق نہیں تو وہ منہ کی کھائے گا۔ حمال واپس آیا اور اس نے کہا میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں گا جس سے میرا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ سامان لانے والی اٹھی اور سب کے لیے کھانا لائی، پھر انہوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد موم بتیاں اور قندیلیں روشن کی اور شراب پینے اور اپنے اپنے معشوقوں کا ذکر کرنے لگے۔ ابھی انہیں کھانے پینے، شراب نوشی، نقل، ہنسی مذاق اور اٹکیلیوں میں ایک پہر سے زیادہ نہ گزرا ہوگا کہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ ایک لڑکی اٹھ کر دروازے پر گئی اور واپس آ کر کہا دروازے پر 3 قلندر کھڑے ہیں جن کی داڑیاں، سر اور بھویں منڈی ہوئی ہیں اور تینوں بائیں آنکھ سے کانے ہیں۔ یہ بڑا عجیب اتفاق ہے۔ وہ سفر کرتے ہوئے ابھی یہاں پہنچے ہیں۔ ان کی صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسافر ہیں اور آج پہلی بار ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی جگہ رات بسر کرنے کے لیے نہ ملی، تو انہوں نے کہا کہ شاید اس ڈیوڑی کا مالک ہمیں اپنے استبل یا کسی غیر آباد گھر کی کنجی دے دے اور ہم وہاں رات گزار سکیں۔ ان میں سے ہر ایک کی شکل و صورت مضحکہ خیز ہے۔ لڑکی لگاتار ان کی سفارش کرتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اچھا انہیں اندر بلا لا، مگر ان سے یہ شرط کر لیجیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ پوچھیں جس سے انہیں تعلق نہ ہو ورنہ منہ کی کھائیں گے۔ لڑکی خوش ہو کر چلی گئی اور تینوں قلندروں کو اندر لے آئی۔ انہوں نے آ کر سلام کیا اور آداب بجا لائے۔ لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں اور ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں بٹھایا۔ قلندروں نے دیکھا کہ کیا خوبصورت محل ہے اور صاف ستھری جگہ، چاروں طرف پھول پتیوں سے آراستہ ہے، موم بتیاں جل رہی ہیں اور خوشبوئیں نکل رہی ہیں، پھل، میوے اور شرابیں رکھی ہوئی ہیں۔ تینوں نے کہا بہت خوب۔ اب وہ حمال کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ وہ مزے میں ہے
اور नशे की वजह से इसके हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं। उसे देखकर उन्हें ख्याल हुआ कि वो भी घर वालों में से है। हमाल उठा और आंखें फाड़ फाड़ कर इनकी तरफ देखने और कहने लगा, बैठ जाओ और फजूल बक बक मत करो। क्या तुमने दरवाजे पर कतबा नहीं पढ़ा? तुम जैसे फकीरों के लिए शाया नहीं कि हमारे साथ ऊंची आवाज में बात करें। उन्होंने कहा, ए फकीर, हम तुझसे माफी मांगते हैं और तेरे आगे सर झुकाते हैं। लड़कियां हंस पड़ी और उन्होंने उठकर कलंदरों और हम्माल के दरमियान सुलह करा दी। कलंदरों के सामने खाना पेश किया गया। उन्होंने खाना खाया और फिर शराब पीने बैठ गए। इसी दौरान हम्माल ने कलंदरों से कहा, ए भाइयों, अगर तुम्हें कोई कहानी या अजीबो गरीब किस्सा मालूम हो तो सुनाओ। इस पर उन्हें जोश आ गया और उन्होंने कहा कि बाजे मंगवाओ। दरवाजा खोलने वाली लड़की उठी और ढोलक, सारंगी और चिंग ले आई। कलंदर उठे और बाजे बजाने और गाने लगे। लड़कियों ने इतनी तारीफ की कि इनका दिमाग अर्श पर पहुंच गया। यही हो रहा था कि फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाली उठी कि दरवाजे पर जाकर देखे कि कौन है। इस बार दरवाजा खटखटाने की वजह यह थी कि खलीफा, इसका वजीर और इसका जल्लाद इस रात तफरीह करने और शहर का हाल चाल देखने निकले थे। खलीफा का दस्तूर था कि वो सौदागर का भेस बदल कर निकलता था। जब वो इस रात निकले और शहर का चक्कर लगाया और उस डेवड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने बाजे और गाने की आवाज सुनी। खलीफा ने अपने वजीर से कहा, मेरा जी चाहता है कि इस डेवड़ी में चलकर गाना सुने और घर वालों से मिलें। वजीर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये लोग नशे में हैं। मुझे डर है कि कहीं इनसे हमें तकलीफ न पहुंचे। खलीफा ने कहा, हमें जरूर अंदर चलना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तू अंदर चलने की कोई तदबीर निकाल। वजीर ने सर झुका दिया और आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाली ने आकर दरवाजा खोला। वजीर आगे बढ़ा और जमीन को बोसा दिया और कहा, ए बीबी, हम लोग तिब्रिया के सौदागर हैं। बगदाद में आए हुए हमें सिर्फ 10 दिन हुए हैं। हम अपना सामान बेच चुके हैं और सौदागरों की सराय में ठहरे हुए हैं। आज रात एक सौदागर ने हमारी दावत की थी। वापसी पर रात हो गई और हम अपनी सराय का रास्ता भूल गए। तुम हमें आज की रात अपने यहाँ बसर करने दो। खुदा तुम्हें इसका अजर देगा। दरवाजा खोलने वाली ने देखा कि इनका हुलिया सौदागरों का सा है। वो अपनी बहनों के पास गई और जो कुछ वजीर ने कहा था उन्हें कह दिया। लड़कियों को इन पर रहम आया और कहने लगी कि इनको अंदर बुला ला। वो वापस गई और इनके लिए दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा कि हम तेरी इजाजत से अंदर आते हैं। उसने कहा, हाँ, अंदर आओ। जब लड़कियों ने उन्हें देखा तो वो खड़ी हो गई। इनको बिठाया, इनकी खातिर तवाज़ो की और कहा, यहाँ रात गुजारने के लिए तुम्हें हमसे एक शर्त करनी पड़ेगी। उन्होंने पूछा कि वो क्या है। लड़कियों ने कहा कि जिस बात से तुम्हें ताल्लुक ना हो इसे मत पूछना, वरना गालियां सुनोगे। उन्होंने कहा, बहुत खूब। अब वो लड़कियां शराब नोशी के लिए बैठ गईं। खलीफा ने तीनों कलंदरों की तरफ नजर उठाई और ये देखकर इसे सख्त हैरानी हुई कि वो तीनों के तीनों बाईं आंख से काने हैं। लड़कियों ने खलीफा और इसके साथियों को शराब पेश की और कहा, पियो। खलीफा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया, मैं हज के लिए जाने वाला हूँ, इसलिए शराब नहीं पी सकता। ये सुनकर दरवाजा खोलने वाली उठी और एक दस्तरखान लाकर बिछा दिया और इस पर एक चीनी का प्याला रखकर इसमें जड़ी बूटियों का अर्क, एक चमचा बर्फ और मिश्री डाल दी। खलीफा ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी भलाई का बदला परसों जरूर दूंगा। अब वो शराब नोशी में मशगूल हो गए। जब शराब का नशा चढ़ने लगा तो बड़ी लड़की उठी और आदाब बजा लाई और सामान लाने वाली लड़की का हाथ पकड़कर कहा कि बहन उठ ताकि हम अपना कर्जा अदा करें। दोनों बहनों ने कहा, बहुत खूब। ये कहकर दरवाजा खोलने वाली इनके सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले वो छिलके बाहर फेंक आई
कमरे को साफ किया और कलंदरों को ले जाकर महल के किनारे एक दीवान पर और खलीफा, वजीर और जल्लाद को दूसरे किनारे दूसरे दीवान पर बिठा आई और हम्माल से चिल्लाकर कहा, ऐ बेगैरत, तुझे क्या हो गया? तू कोई अजनबी शख्स नहीं, तू तो घर वालों में से है। हम्माल कमर कसकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तू क्या चाहती है? लड़की ने कहा, तू अपनी जगह वहीं रुक जा। सामान लाने वाली लड़की ने कमरे के बीच में एक कुर्सी डाली और एक कोठरी खोलकर हम्माल से कहा कि आ मेरी मदद कर। हम्माल ने देखा कि 2 कुतियां जंजीर में जकड़ी हुई हैं। लड़की ने उससे कहा, इन्हें ले चल। हम्माल उन्हें कमरे के बीच में ले आया। अब मकान की मालका उठी और आस्तीनें चढ़ाई, हाथ में एक कोड़ा ले लिया और हम्माल से कहा कि एक कुतिया को यहाँ ला। वो जंजीर खींचकर उसे लाया। कुतिया रोती, चिल्लाती और लड़की की तरफ अपना सर हिलाती जाती थी। लड़की ने उसे कोड़े मारने शुरू किए और कुतिया चिल्लाने लगी। उसने इतने कोड़े मारे कि उसकी कलाइयां थक गईं। अब उसने कोड़ा फेंककर कुतिया को सीने से लगा लिया और उसके आंसू अपने हाथ से पोंछने और उसे चूमने लगी। फिर उसने हम्माल से कहा कि इसे ले जा और दूसरी कुतिया को ला। जब वो दूसरी कुतिया को लाया तो उस लड़की ने उसके साथ वही किया जो पहली के साथ किया था। इस पर खलीफा का दिल कुड़ा और इसे सख्त परेशानी हुई और इसका सब्र हाथ से जाता रहा और इसके दिल में इन कुतियों का हाल जानने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने वजीर की तरफ इशारा किया। वजीर ने खलीफा की तरफ मुतवज्जे होकर इशारे से जवाब दिया कि चुप रहिए। अब इस लड़की ने दरवाजा खोलने वाली की तरफ मुखातब होकर कहा, उठ और अपना फर्ज अदा कर। उसने कहा, बहुत खूब। अब वो एक कोठरी में गई और वहां से अतलस का एक थैला ले आई जिसमें हरी झालर और 2 सोने के फंदे लगे हुए थे। मालका के सामने खड़े होकर उसने थैला खोला और इसमें से एक सारंगी निकाली, इसे खूब ठीक करके बजाने और गाने लगी। जब मालका ने इसका गाना सुना तो इसके दिल से एक सर्द आह निकली और उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। खलीफा ने देखा कि उसके बदन पर छड़ी और कोड़े के निशान हैं और वो सख्त हैरान हुआ। दरवाजा खोलने वाली ने उस पर पानी का छींटा मारा और उम्दा पोशाक लाकर उसे पहनाई। सब लोगों को ये माजरा देखकर सख्त परेशानी हुई और इनमें से किसी को इस किस्से की खबर न थी। खलीफा ने वजीर से कहा, इस लड़की, इसकी हालत और कोड़े के निशान को देख। जब तक मुझे इस लड़की और दोनों कुतियों का वाकया मालूम न हो जाए मैं चुप नहीं बैठ सकता। वजीर ने कहा, ऐ मेरे आका, उन्होंने हमारे सामने शर्त की है कि जिस बात से हमें ताल्लुक ना हो इस पर जबान न खोलें, वरना मुंह की खाएंगे। अब इस लड़की ने सामान लाने वाली से कहा कि बहन करीब आ और अपना फर्ज अदा कर। उसने कहा कि बसरो चश्म और सारंगी लेकर अपने सीने से टेक ली और बजाने और गाने लगी। जो ही मालका ने ये दूसरा गीत सुना तो चिल्लाकर कहने लगी, क्या खूब कहा, और पहले की तरह अपने हाथों से अपने कपड़े फाड़ने लगी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सामान लाने वाली आगे बढ़ी और इसने इस पर पानी छिड़का और दूसरे कपड़े पहनाए। अब वो उठ बैठी और अपनी बहन से कहने लगी कि और सुना और मेरा कर्जा पूरा पूरा अदा कर। ये सुनते ही सामान लाने वाली ने फिर सारंगी उठाई और गाने लगी। जब लड़की ने सुना तो चिल्लाने लगी और अपने कपड़े दामन तक चाक कर डाले और तीसरी बार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और मार के निशान फिर खुल गए। अब शहरजाद को सुबह होती हुई दिखाई दी और उसने कहानी बंद कर दी।